बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ क्लास 5th टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन वी स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर एंड सेकेंड टॉपिक इज मल्टीपल्स। व्हाट द मीनिंग ऑफ फैक्टर? Factor that means we start the writing factor. What the meaning of factor? Factor number means गुणांक। किसका फैक्टर है? That means अगर क्वेश्चन कोई पूछता है 25 का फैक्टर लिखो, तो 25 नंबर किस किस नंबर से कट जाएगा वो उसका फैक्टर होता है। एग्जाम्पल 25 किसका फैक्टर है? 1 का है, 5 का है, 25 का है, दैट्स इट। और किसी भी नंबर से नहीं करता। फैक्टर जो होता है वो अपने नंबर से बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे मैंने पूछा 10 का फैक्टर, तो 10 का फैक्टर 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। ओके, 1 इज द कंपल्सरी राइट, अनदर 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। अंडरस्टैंड? देन 2 divided by 5, 10, 2 5 10 is coming in the table. Then 2 is also factor of 10 and 5 2 10, then 5 is the factor of 10 and 10 1 10, that's it। इससे आगे कोई भी 10 का फैक्टर नहीं होगा। कभी भी फैक्टर अपने नंबर से बड़ा नहीं होता। एंड देन व्हाट द मीनिंग ऑफ मल्टीपल्स? दैट मींस मल्टीपल, दैट मींस द टेबल। मल्टीपल दैट मीन द टेबल ऑफ द नंबर्स। जैसे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, that is the multiples of any number. If you ask to write the 5 multiples of 5, write the 6 multiple of 7, write the 3 multiples of the 4, then you write the table of 4 and you write the table of 6 7 8, anything your number is asking. Then we start exercise 3.1 of chapter class 5th. Okay, then here book, then here factor and multiples. Find the factor of question number first. Find the factor of first number is 28, second number is 15, third number is 56. Then how to write factor of the numbers? Then first 28, then you know ना 28 किस किस नंबर से divisible हो जाएगा, that is the factor. Okay, then 1 is the factor of all number. Understand? Then this one is the even number, then divided by 2 also. Then 2 is the also factor of 28. And 3 7 are 28, 3 9 are 27, 3 9 are 27, 3 8 are 24. That it means 28 is not factor of 3. Then 4 7 are 28 and 7 4 are 28 and 14 2 are 28. Then next number is the 28 28 are 28. That's it. This one is the factor of 28. इससे ज़्यादा इसका फैक्टर नहीं हो सकता बच्चों। अपने नंबर से बड़ा इसका फैक्टर नहीं हो सकता। हाँ, if the asking the right the multiples of this number, then so many numbers, infinite, not countable. हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं मल्टीपल्स को, बट फैक्टर्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं कितने फैक्टर हैं। That same to same like this 15, write the factor of 15. Then first factor is 1, second factor is 3, third factor is 5, fourth factor is 15. That's it. Okay, and then 56, then first factor is 1, then this one is the even number, then also cut divided by 2, and 3 is not divisible by 56, that means 3 is not factor of 56, and 4 1 is 4, 4 4 is 16, that means 4 is also 8 7 is 56, 7 8 is 56, 8 7 is 56, and then so next number is 9 10 11 12 13 14, 14 4 is 56, 4 14 4 4 is 16, 14 4 is, that's it, so on factors। इसके भी इसी तरीके से हम लोग इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। फैक्टर का मतलब एक ही नंबर नहीं होगा, जिस नंबर से डिविजिबल होगा। लास्ट वन इज द 56 इज द लास्ट फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अंडरस्टैंड? फिर से फैक्टर मींस वो नंबर जो उससे डिविजिबल हो जाए उसको उसका फैक्टर कहते हैं, और जो डिविजिबल नहीं होगा जिसमें रिमाइंडर रह जाएगा वो उसका फैक्टर नहीं होगा। अगर हम लोगों को इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि फैक्टर इफ
a number, if a number is expressed as a product of two whole number and the whole numbers called factor of that number. What is the definition of this factor? If a number is expressed as a product of two whole numbers, otherwise the whole number is called the factor of the number. That means ऐसे दो नंबर, ऐसे नंबर्स का समूह जिससे हम लोग उस नंबर का मल्टीप्लाई करके उस नंबर को फाइंड कर सकते हैं, या उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 हो, उसका वो फैक्टर होता है. Understand? The next point is the multiples. What the meaning of multiples? You understand? Again I explain the definition of the factor. If a number is expressed as the product of two number, whole number, the whole number is called the factor. Like 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 5 है 15. That means 3 and 5 is the factor of 15. Understand? Then you solve the all next questions of the recap of your chapters 3 and exercise 3.1. And next point is your what? Multiples. Next point is the multiple. But we discuss some properties of the factor. Number 1, every number has a 1 as its factor. 1 is the factor of all numbers. 1 is the factor of all numbers. किसी भी नंबर, जो भी जितने भी नंबर्स हैं उनका सबका 1 क्या है? फैक्टर है. 1 is the smallest factor of a number and this one is the smallest number is the factor. The biggest factor of a number itself. The second point is the biggest factor of a number is the itself. Okay, the biggest factor of the number is the is the itself. जो बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, वो खुद वो नंबर होता है, उससे बड़ा उसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता है. Every even number is true as a factor. Every number is ending by 5 or a 0, 5 as the one factor, and every number is a 0 at a one place divisible by 2 and another thing 10. Okay, then next point is the multiple. What the meaning of multiples? Then we discuss. Important point is the 1 is the factor of all number and the biggest factor of the number is itself. And what the meaning of multiple? The meaning of multiples that mean the multiple. Write 2 multiples of 3. Right? Question is write 3 multiples of 5. 3 multiples, then 5 multiply 1, 5 1 is 5. 5 multiply by 2, that means 10. 5 multiply by 3, that means 15. This one is the 3 multiple of the 5. And same 6 multiples, 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 3 is 18, so on. How many? If I ask some 5, write 5 multiples, then you write the table of 5. 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20. Same thing. Okay, you understand? And then next point is the divisibility rule. What the divisibility rule is very important. What the meaning of divisibility? That means divisible मतलब किसी भी नंबर से कौन सा नंबर divisible होगा और कौन सा नंबर नहीं divisible होगा. That means divisibility rule. Divisibility. What the meaning of divisible? डिविजिबिलिटी मतलब होता है किसी भी नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि इसका रिमाइंडर 0 आ जाए. अगर मैं बोलूं 15 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, क्या 3 इज डिविजिबल बाय 15? से यस सर बोलेंगे यस, क्योंकि जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 15 को,
3 5 जा 15 होगा और ये कट जाएगा। अगर मैं यही चीज बोलूं क्या 15 डिविजिबल बाय 2, क्या 15 2 से डिविजिबल हो जाएगा? देन वी राइट नो। व्हाई? बिकॉज़ 2 डिविजिबल बाय 15, तो 2 7 जा 14 and remainder is 1. Then that is the not divisible by 15 is not divisible by 2 and 15 is divisible by 3. Then without division how to say this one is divisible by 2 or this one is divisible by 3 and this one is not divisible by 3. Then some rule are very important rule for your class 5 6 7 8 9 10 every number every time he asking some question. When you divide na big divide then you think किस नंबर का टेबल पढ़े कि ये नंबर डिविजिबल हो जाए, किस नंबर से मैं इसको काटूं, मैं समझ ही नहीं पाता मैं किस नंबर से इसको काटूं। दैट थिंग उस समय हमें डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और उस समय हमें डिविजिबिलिटी रूल आना ही चाहिए। उस चीज के बारे में हम लोग एक नॉर्मल वे से अभी मैं समझाता हूँ आपको। क्या है कि अगर किस नंबर को 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है। देन फर्स्ट नंबर इज 2। कौन से नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं? कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं? देन जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे, किस प्लेस पे बेटा? यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से डिविजिबल होता है। एग्जांपल 2 4 2 7 8 0 5 7 6 दिस वन इज द डिविजिबल बाय 2 क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है बेटा? 0 2 4 6 8 है। जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? यस और नो? से यस सर। आ रहा है ना समझ में? अच्छे से ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा बेटा, कोई हार्ड नहीं होता, बस हमें समझने की देरी। जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। अब 3 का रूल क्या है बेटा? 3 जो भी नंबर है जैसे 5 3 8 ऐसा नंबर है, इन सब के यूनिट्स को प्लस करो। लाइक 5 + 8 + 3 अगर इनका सम 3 के टेबल में आता है then this one is divisible by 3 otherwise not divisible by 3. That means 8 and 3 11 and 5 16. Since 16 is divisible by 3 and not, no, then this one is not divisible. What? Not divisible. And if we write 5 and 8 13 and 13 to 15, then 5 + 8 + 2 is 15. Then divisible by 3 is yes na? Then this one is divisible by 3. 3 का रूल क्या है बेटा? सारे नंबर्स को, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे। अगर जो ऐड करने पे आया है वो 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजिबल होता है, नहीं तो नहीं होता। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। एंड नेक्स्ट रूल इज 4. 4 इज वेरी इजी। 4 का क्या होता है बेटा? जैसे जो भी लास्ट में डिजिट है, जैसे इतना है तो हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे क्या ये 4 के टेबल में आता है, क्या ये 4 का टेबल में आता है। 73 क्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा? से नो सर, बिकॉज़ दिस वन इज द ऑड नंबर, देन 4 इज नॉट डिविजिबल बाय दिस नंबर, देन नो लिख देंगे। क्यों? अगर इसी की जगह यहाँ पे 5 2 0 होता देन 20 4 5 या 20 लास्ट में 20 आ रहा है मतलब 2 डिजिट चेक करना है, 20 आ रहा है मतलब ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मींस दिस वन इज डिविजिबल बाय 4। क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? यस लिखेंगे। एंड देन आफ्टर 4 देन एंड सो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल इज फॉर 5। क्या? 5 के लिए कौन सा नियम होता है? किसी भी डिजिट्स के पीछे अगर 0 7 5 लास्ट में 5 ये दो प्लेस में ये लास्ट में 2 डिजिट्स आते हैं तो वो 5 से डिविजिबल होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। दैट मींस 7 3 5 0 दिस वन इज डिविजिबल बाय 5। से यस सर, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल मतलब डिवाइड करने, 5 1 जब 5 2 बचा 3 5 4 जा 20 एंड 3 इज रिमाइंडर एंड देन 5 7 जा 35 एंड देन कट एंड 0 इज रिमाइंडर हियर 1470। रिमाइंडर क्या है बेटा? 0। दिस मीन दैट मींस 5 इज द डिविजिबल बाय दिस नंबर। ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। कब? जब लास्ट डिजिट क्या होगी? 0 5 होगी। फिर से मैं रिवीजन कराना चाहता हूँ जो आज हमने टॉपिक कवर किया है। नंबर 1 फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? वो नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर सके वो उसका फैक्टर होता है। फैक्टर हमेशा छोटा नंबर 1 होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर छोटा फैक्टर 1 होता है और उस नंबर का ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है itself, the number divisible by itself, that means the factor. And second thing, multiples. The multiples, that means the table of another thing multiply so numbers
that is called multiples. Like 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3. Write the 3 multiples of 3. That means you write the table of 3. Understand? 2 points. And then we discuss the divisibility rule of 2 3 4 5. Then again we discuss again we revise your this one topic. Then divisibility rule of 2. Last digit is 0 2 4 6 8. That means this one is the even number that divisible by 2. And second thing 3, if the all digits you add and the number is come into the table of 3, that means divisible by 3. किसी भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर या कितना छोटा नंबर दिया हो, उनके सारे डिजिट्स को आप ऐड करें और जो ऐड करने के बाद जो नंबर आए वो उसका क्या होता है, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो उसका डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं डिविजिबिलिटी होता। नंबर 4, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे बेटा। लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो 4 से पूरा डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड लास्ट वन इज द 5 के यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0 और 5 आना चाहिए। दैट मींस वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही जब हम 6 7 8 की बात करते हैं, मैं नॉर्मली तुम्हें बता देता हूँ, 6 से होता है जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है वो 6 से होता है। एंड 8 का क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बेटा, लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं। अगर वो 8 के टेबल में आता है तो वो 7 से डिविजिबल 8 से डिविजिबल हो जाएगा। एंड 9 का क्या, जो रूल सेम 3 का था सेम टू सेम 9 का होगा। दैट मींस sum of all digits if the number is come in the 9 table of 9, that means divisible by 9, otherwise no. That means कोई भी नंबर दिया है उनका सारे डिजिट्स का सम 9 के टेबल में आता है तो वो 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अंडरस्टैंड? एंड लास्ट वन इज द 10 that means if the last unit place is 0 otherwise 00, that means divisible by 10. अंडरस्टैंड? जो मैंने आज टॉपिक आपको बताया है अच्छे से आपको रिवीजन करना है एंड बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है और खूब क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपना खूब ध्यान रखो और अच्छे से मन लगा के एंजॉय करो और पढ़ाई करो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।